Class 9th students, today we are going to start with another topic, and that is acceleration. So far we have discussed about speed, velocity, distance, displacement and their differences. So today's topic is acceleration. So acceleration is basically, in a simple language, is rate of change of velocity. Means whenever any object is changing its velocity. And how velocity can be changed? Velocity can be changed by two ways, either by magnitude. And what is magnitude of velocity? That is speed itself. And the second thing is direction. We know that velocity is a vector quantity, and vector quantity has both the things. It has magnitude also and it has direction. So now if we will use two symbols here, for initial velocity, or we can say initial sample of velocity will be taken as u. It is will be taken as initial velocity, and v, it will be taken as final velocity. Means when you are talking about velocity for two intervals of time, आपके पास दो इंटरवल है. सपोज करो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स आपकी वेलोसिटी क्या है u, एंड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स यू हैव वेलोसिटी v. तो आपसे पूछता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेट ऑफ change of velocity. So first thing, we have the symbol for acceleration is a. acceleration का जो symbol होता है that is a. अब देखिए, first we have to look for change of velocity. तो velocity में कितना change होगा? Final value, ये क्या है हमारी final value, and this is initial value. So a is equal to v minus u. This is the value for change of velocity, but we are looking for rate also, rate of change of velocity. And in physics, rate simply means time, rate of time होता है basically ये. So time t, or you can say t2 minus t1. So here t2 minus t1 is v minus u upon t is equal to 5 minus 3. So we have value of acceleration v minus u upon 2. अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप ना अपना टू व्हीलर राइड कर रहे हैं, और उस टू व्हीलर पे राइड करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहे हैं, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपकी जो मोशन है वो किस में है? लीनियर मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है. और यहाँ पर आपने देखा कि आपकी स्पीड कितनी थी. मान लीजिए आपकी स्पीड थी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड आफ्टर 2 सेकेंड यू नोटिस्ड दैट द स्पीड was v is equal to 15 meter per second. So if someone asks you that what is the value of acceleration, so it is quite simple. A, देखिए, वैसे when you come to higher classes, it is necessary to put the arrow, but here at the level of class 9 you sometime may miss this arrow and you can simply write a. So a is equal to v minus u upon t, and v is 15, u is 10 and t is 2. So 15 minus 10, 5 upon 2 is equal to 2.5. ओके, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए.
अब आप बात करते हैं यूनिट्स की कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट्स ऑफ ए, जो एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं उसके यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास वो देखिए। देखिए न्यूमरेटर में क्या है, v माइनस यू अपॉन टी है, तो v माइनस यू के इकट्ठे अगर मीटर पर सेकंड वाली किसी चीज़ को मीटर पर सेकंड वाली ही किसी चीज़ में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मीटर पर सेकंड ही आएगा। एंड टाइम टी, टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं आपके पास, सेकंड। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मीटर अपॉन सेकंड अपॉन वन, बिकॉज जब ये सेकंड है मैं इसको वन से डिवाइड करूँगा, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो नाउ वी विल सॉल्व इट लाइक दिस। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा मीटर एंड डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर द यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन राइट इट ऑल्सो लाइक दिस, मीटर सेकेंड रेज़ टू द पावर माइनस 2. So here 2.5 meter into second raised to the power minus 2. So this is the value of acceleration. So अब देखिए ये हो गया आपके पास acceleration. अब चीज़ों को एक बार और थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं कि बेसिकली अगर आपको किसी लेमैन को, किसी नॉर्मल बंदे को बताना है जो साइंस स्टूडेंट नहीं है, सो हाउ यू कैन डिफाइन एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, कि एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। जैसे यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया है, यहां पे हमने क्या नोटिस किया कि 2 सेकेंड में कितनी चेंज हुई थी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया था। तो इट मीन्स एक सेकेंड में कितना चेंज आया होगा, 2.5 का। दिस इज योर एक्सेलरेशन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट वी विल सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, दोज आर, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिंपली मीन्स इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि अभी हमने जो पीछे जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्या अज्यूम किया कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। पहले सेकेंड में कितनी होगी, 2.5 ऐड होगी, और नेक्स्ट सेकेंड में फिर से 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी हमारे पास। सो व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, then it will be known as uniformly accelerated motion. दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का यू कैन सी इट सिंपली दैट इसके नॉमेनक्लेचर से ही पता लग रहा है हमें कि वी डू नॉट हैव श्योरिटी बाई हाउ मच अमाउंट द एक्सेलरेशन विल चेंज, सॉरी वेलोसिटी विल चेंज। ओके, नो फिक्स amount for change in velocity per second। मीन्स जब हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और हम जज भी नहीं कर सकते कि किस टाइप का एक्सेलरेशन है, कितना बढ़ रही है वेलोसिटी पर सेकेंड, सो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Generally, we will keep our focus to this uniform acceleration. In this chapter, we will see 3 main equations. V is equal to u plus at. We will come to the derivation of these equations later. V is equal to u plus at. S is equal to ut plus half at square
and third one is v square is equal to u square plus 2as. So in all these three equations we are having uniform acceleration a. It means that for the entire period of motion which is under consideration, we will keep the value of acceleration same, and that will be a. Alright. Now in the next class we will discuss about the graphical representations of motion. Means जितने भी टाइप के हमारे पास मोशंस होते हैं, we will try to draw the graphs for them. Okay, till then, bye bye, take care and read all this stuff carefully.